So in the previous video we studied that Maddie and Peggy were very sorry and they wanted to apologize, but Wanda had already moved away from that city, and in order to apologize they write a letter, but they couldn't summon it, they couldn't write sorry in that letter as they don't have any courage to do so. So they write just a friendly letter we give to a good friend, in which they asked about how their new teacher is, how the new place is, etc. They mailed that letter to Boggin's Height with please forward written on it because they didn't know her new address. Okay, there we have left. We'll start from paragraph second. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy began to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got. And before Wanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. So what happened now? Now जो लेटर उन्होंने भेजा था उसका रिप्लाई नहीं आया था अभी. There was no reply from Wanda. But they didn't also receive the letter back. But वो लेटर, जब लेटर नहीं पहुंचता है किसी के पास तो वापस आ जाता है, तो वो वापस भी नहीं आया था. So they thought that maybe the letter had reached Wanda. But maybe she is so upset and so angry at both of them that she didn't reply. So maybe रिप्लाई इसलिए नहीं आया क्योंकि वो काफ़ी अपसेट है उनसे, काफ़ी उनसे एंग्री है उन दोनों से, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया. पैगी बिगैन टू फॉरगॉट. जैसी डेज होते गए, वीक्स होते गए, पैगी ये जो होल बिजनेस है, ये जो होल पूरी जो सिनेरियो है वो भूलना चालू करती गई. The Peggy began to forget about this whole thing while Maddie used to make scenarios in her head before sleeping where she defended Wanda. Now अब ये रियलिटी में तो नहीं कर सकती और ना ही वो पास्ट में जाके इस चीज़ की अपोलोजाइज़ कर सकती है. सो जब वो सोने से पहले वो ऐसे सिनेरियोज़ बनाती थी अपने हेड में कि जहाँ पे वांडा को सब लोग परेशान कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं और मैडी उसे डिफेंड कर रही है, उसे बचा रही है, जो वो एक्चुअली में करना चाहती थी. She thought of scenarios where large group of girls surrounded Wanda and asked her, "How many dresses have you got?" As soon as anyone could say more, Wanda would interrupt and say, "Stop," so that all of them could end up ashamed. Now वो ऐसे सिनेरियो क्रिएट करती थी जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जो सराउंड करे हुए हैं वांडा को और उन्हें उससे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और जैसे कोई और कुछ बोलने जाता हो उससे पहले ही वांडा उसे इंटरप्ट कर देती और मैडी उसे इंटरप्ट करके स्टॉप बोल देती, जिससे कि सब लोग अशेम्ड हो जाते, अशेम्ड फील करना स्टार्ट कर देते. तो ये सिनेरियोज़ वो सोने से पहले बनाती थी अपने माइंड में. Let's read further. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. Now, okay, so winter time था और क्रिसमस आने वाला था. ठीक है, क्रिसमस आ चुका था तो उन्होंने पूरी क्लासरूम बेल से, स्मॉल ट्रीज से डेकोरेट करी हुई थी. उसी दिन लास्ट डे था स्कूल का. तो मिस मैसन
told the student that she had received a letter from Wanda Petronsky. तो मिस मैसन ने बताया कि वोंडा पेट्रॉन्स्की से एक लेटर आया, रिसीव करा है उन्होंने, जो वोंडा ने भेजा है. शी इज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव इट बिकॉज नाउ शी कैन सेंड हर द मेडल टू. नाउ वो बहुत खुश थी कि उन्होंने उसको वो जो लेटर है वो रिसीव करा है, क्योंकि जो उसने अब कॉन्टेस्ट जीता था, जो मेडल था, वो भी अब उसे भेज सकती थी, बिकॉज नाउ दे नो देयर न्यू एड्रेस. ओके, सो व्हाट वाज रिटन इन दैट? Okay, let's read further. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. Now, ये किसकी लाइन्स हैं? ये मिस मैसन की लाइन्स हैं. जो कोटेड है वो मिस मैसन की लाइन्स हैं, जहाँ वो याद दिला रही हैं सारे क्लासमेट्स को कि क्या तुम लोग को याद है वोंडा पेट्रॉन्स्की कौन थी? वही गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई हुई थी, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था. वेल, शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू नो कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि उन्हें अब एड्रेस मिल गया था, क्योंकि वहाँ से लेटर आया था. सो अब शी कैन इवन सेंड द मेडल टू हर. Now let's read what was written. Dear Miss Masson, how are you in room 13? Please tell the girls that can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I had liked that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. So, letter began in a very friendly tone. जो letter था वो बहुत ही friendly tone में शुरू होता है. Okay? And what happened now? What this letter says, Wanda asked how everyone was. So उनकी greetings लेती है. तो उस लेटर जो स्टार्ट होता है पहले वो greetings देती है, पूछती है कि सब लोग कैसे हैं, and that they could keep her 100 dresses. And she also told them, all the classmates, कि वो उसकी सारी 100 dresses रख सकते हैं, क्योंकि अब इस नए घर में उसके पास और 100 dresses है, which are all lined up in her closet. She specifically mentioned the dress she wanted Maddie and Peggy to take home. एंड उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कौन सी ड्रेस की ड्राइंग वो मैडी और पेगी को देना चाहती है. द ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स वॉज फॉर पेगी एंड द ब्लू वन फॉर मैडी. शी एक्सप्रेस्ड हर अफेक्शन टूवर्ड्स मिस मैसन. वो जो लव है फॉर मिस मैसन, फॉर द टीचर, वो उसको एक्सप्रेस करती है. And wrote her that new teacher could never replace Miss Mason. And she wrote कि जो new teacher वो यहाँ पर हैं वो कभी भी Miss Mason को replace नहीं कर सकती हैं. She winded up the letter. वो end करती है letter को by wishing everyone Merry Christmas and also wrote that she missed everyone in room 13. And वो ये भी लिखती है कि room 13 में जितने भी लोग थे वो सबको miss करती है. Okay? Let's read further. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreath and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and the window candy, peppermint stick, and cornucopias of shiny transparent paper was strung. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy, this shows was really like sir.
It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's are all right. And that's that, I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could never make her things right between them. So कॉन्कॉपियस का मतलब होता है डेकोरेटिव कंटेनर्स, यूजुअली जो ऐसे कंटेनर्स या वास जिसमें फ्लावर्स या फ्रूट्स होते हैं. होली मीन्स पवित्र. ओके, सॉरी होली मीन्स जो बहुत ही शुभ होता है, पवित्र होता है ना. जैसे इन हिंदू कल्चर हम बोलते हैं ना, इट इज़ अ वेरी होली थिंग. गीता इज़ अ होली बुक और इन इस्लाम कुरान इज़ अ होली बुक. ठीक है, तो क्रिसमस में जो क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए स्मॉल ग्रीन लीव्स और स्मॉल वाइट फ्लावर्स और रेड बेरीज़ यूज़ करते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए, तो वो बहुत होली माने जाते हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं. ठीक है, सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट इट वॉज क्रिसमस सीज़न. तो ये पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे क्रिसमस की प्रिपरेशंस चल रही हैं और कैसा मैडी और पैगी फील कर रहे हैं. सो क्रिसमस सीज़न था, जितने भी घर थे वो सब डेकोरेटेड थे. ग्रॉसरी स्टोर्स, जो जनरल स्टोर्स थे, वो सब स्टॉक्ड थे विद क्रिसमस ट्रीज, कैंडीज, पेपरमेंट स्टिक्स एंड अदर क्रिसमस स्टफ़. तो जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स में ये सब लोग बिल्कुल स्टॉक्ड था, बहुत सारा मिल रहा था ये, जैसे कि क्रिसमस ट्रीज़ हैं, कैंडी है, पेपरमेंट है. नाउ द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कलरफुल एंड जॉयफुल. नाउ ये और जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही जॉयफुल था, हैपनिंग था, कलरफुल था. नाउ मैडी एंड पैगी टुक होम द ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. जो वोंडा ने उनके लिए ड्राइंग स्पेसिफिकली बोली थी वो मैडी और पैगी बहुत ही केयरफुली अपने घर लेके गई. व्हेन पैगी रियलाइज दैट दिस जेस्चर इम्प्लाइड दैट वोंडा लाइक देम. पैगी को लगा कि ये जो लेटर लिखा है वो इसीलिए लिखा है वोंडा ने क्योंकि उसे वो लेटर मिल चुका है और ये उसका जेस्चर है दिखाने का कि वो उन्हें पसंद करती है. दे ऑल्सो एज्यूम दैट शी गॉट देयर लेटर एंड एवरीथिंग वॉज पीसफुल बिटवीन दैम. मैडी ऑन द अदर हैंड वॉज क्वाइट सैड बिकॉज शी वुड नेवर बी एबल टू सी दैट पॉलिश टाइट लिप्ड गर्ल अगेन. नाउ मैडी अदर हैंड बहुत ही सैड थी, बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो कभी भी वोंडा को नहीं देख पाएगी. शी नेवर गेट अ चांस टू मेक अमेंड्स. उसे कभी भी चांस नहीं मिलेगा कि वो अपनी गलतियों के लिए उससे अपॉलजी ले सके, उसको अपोलोजाइज कर पाए. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. शी वेंट बैक होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive and the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. So as soon as Maddie reached home, जैसे ही मैडी घर पहुंची उसने जो ड्राइंग थी उसको पिन कर लिया था वॉल में, जिस वॉल में पिंक फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ था. एंड इट वॉज थोड़ा सा फटा भी हुआ था वो वॉलपेपर, इट वॉज टॉर्न स्लाइटली. और जिस पार्ट में जो वॉलपेपर जो टॉर्न था वो जिस पार्ट में था वॉल के उसने उसके ऊपर पिन कर लिया था टू हाइड दैट टॉर्न पार्ट ऑफ द वॉलपेपर. मैडीज रूम वॉज शैबी टू बट द ड्राइंग मेड इट लाइवली. मैडी भी पुअर थी, उसका रूम भी थोड़ा शैबी था, बट जो ड्राइंग थी उसकी वजह से उसका रूम बहुत लाइवली लगने लगा था. शी स्टेयर्ड एट द ड्राइंग कॉन्स्टेंटली लगातार कंटिन्यूसली वो उस ड्राइंग को घूरती रही एंड थॉट कि वोंडा कितनी नाइस थी हमेशा से उसके साथ. शी थॉट हाउ वोंडा हैड बीन नाइस टू देम. शी ऑलवेज थॉट अबाउट दैट. That's it for the video. I will explain you further in the next video.